the next discussion on the state of development. So, ladies and gentlemen, let me invite our moderator for this panel, Mr. Bhushan Mohan, who is Senior Fellow, Scotch Development Foundation and former Principal Consultant, NEGD, Ministry of Electronics and IT. He was responsible for formulation of policies, guidelines, and strategy for implementation on NEGP with a vision to bring public services within the reach of every citizen. He was responsible for advising, monitoring, and supporting various central and state government projects in areas of project conceptualization, technology procurement, capacity building for implementation of MMPs for delivering citizen services in the remotest corner of the country, so on and so forth. Mr. Bhushan would be conducting the session on the state of development. I have the pleasure of handing over the mic to him. All the panelists in this panel are present except Mr. Amarjit Kumar Sharma, who would be joining us in a little while from now. Mr. Bhushan Mohan, over to you. Please unmute yourself. Thank you very much. Let me first of all welcome all the persons out here who are there for this particular session. It's my pleasure to first introduce and welcome Mr. Anup Kumar Agarwal, who is now the Principal Secretary, Technical Education, Training and Skill Development, West Bengal. He was earlier the President and CEO of NEGD at MeitY and was responsible for coordinating Digital India program and implementation of DigiLocker and Umang application. Currently, under his aegis, industry-led, demand-driven, employment-assured version of Utkarsh Bangla, a skilling program, is taking shape in the Technical Education, Training and the Skill Development Department at West Bengal. Next, we have Mr. Pawan Arora, Commissioner, Rajasthan Housing Board. He's credited with revival of several organizations and departments. During the last 2 years, he has been instrumental in regenerating the Rajasthan Housing Board, and even more remarkable as he steered through a pandemic. We also have Mr. Mohammad Iqbal Chaudhary, Director, Agriculture, Production and Farmers Welfare, Government of Jammu and Kashmir. Over 37 years of experience in the field of agriculture and ranging from the nodal officer state mission on saffron to being the chief agriculture officer, the state mission director for Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana and Pradhan Mantri Krishi Sanchai Yojana. He was also the state nodal officer, National E-Governance Plan in Agriculture. Next, we have Mr. Amarjit Kumar Sharma, Director, Higher Education, Himachal Pradesh. He is an academic at heart who was earlier principal of various colleges, elevated to the position of Joint Director Colleges and took over as a director in 2018. Let me welcome all the panelists out here. They come with a varied experience in various fields, which is the key to the development, which is the topic for this particular panel discussion. Now, when we really talk about the development, what does it really mean? And what does it mean to the common citizen and the common man, Aam Aadmi? Any development which takes place should ultimately result in benefiting the Aam Aadmi. And the way it should really benefit, and see, one of the key, I think, the takeaways is that it should definitely raise his standard of living. When I say standard of living, it's quite a deep word.
it incorporates various aspects, primarily the economic growth of the family, the buying power, the equality. We have a whole lot of issues in that in our society. The equality is there. It's very, very important. So these are some of the key points which are there. And in our today's panel, we are really covering a very broad spectrum, which primarily aims, now each of those areas primarily aims to achieve the same goal. One of the things we achieve this goal is through employment. And what do we need for employment? Technical skills and the skill development. And that is what one of the points which is going to be covered today. Majority of our populations are in the farms and agriculture. Farming and farmers are extremely important. So that is another thing which will be covered in this particular panel. Tourism is a major revenue earner. We will also take a glimpse on that particular area. And all said and done, education, both primary and higher education, is extremely important. We will address that also. And once we have all this, ultimately, each individual, each family does need a proper housing to stay. So we will look into the housing aspect, and combined with all this, we definitely need the proper health services, the hygiene and cleanliness, which goes along with whatever we do. Now, having said this very briefly, let us look into what will be the key vision and objectives and goals for the next 5 years in these various segments. It's my pleasure to invite first Mr. Anup Kumar Agarwal, Principal Secretary, Technical Education, Training and Skill Development, to share his vision and his achievements to start with. Mr. Anup. Thank you, Mr. Bhushan. Thank you. Am I audible? Yes, you are very much audible. Okay. Thank you, Mr. Bhushan. Thanks. And my greetings to the co-panelists. And first of all, I would like to thank Scotch Foundation to have created this platform on which we could deliberate today. Multitude of projects have been showcased during the whole day, and all of them are trying to achieve some benefit or the other to the citizen of the country. We in the state of West Bengal are working for the development of our citizens. And before I speak about the technical education related matters, I would like to submit to the panelists and to the audience that Government of West Bengal is very committed towards economic, social and other aspects of development of the state and its citizen. And it needs no reminding that West Bengal or Bengal has been pioneer in social reforms also for the centuries. It used to be said what India thinks, what Bengal thinks today, India thinks maybe a few days later or a few years later. So with that background, Bengal's heritage, history and culture of social reforms and development in all aspects, the state government of West Bengal has been taking multiple steps for economic and other development. Other, I would like to point out, is the political arena of development. West Bengal has been pioneer in introducing local self-governance at panchayat, block and district level, and also at the urban local bodies level. And there is a bit of difference in other places, and Bengal is that in the urban local bodies, the chairperson is the chief executive of that body. The mayor is the chief executive and not the commissioner or the executive officer,
giving the political functionaries, the elected representatives, more say in handling the affairs of that local body. So that empowerment, that decentralization, and political consciousness and awareness in the masses, it leads to large scale political participation of our people. If you see all the elections starting from Lok Sabha, Vidhan Sabha, or the local bodies election, the percentage of voting is almost the highest in the country in West Bengal. So social, political, and then economic development is dependent on multiple factors. One of them is the legacy, second is the location, and third is the initiatives of the government. And our government has been taking multiple initiatives to reach out to the people by different welfare measures to provide them basic facilities in terms of healthcare, in terms of food security, in terms of education, poverty reduction, and then employment through skilling. If I may be allowed to take a few minutes to point out that recently the government of West Bengal has started a scheme called Lakshmi Bhandar. It's called Lakhi Bhandar in local pronunciation, in Bangla pronunciation. It's a cash transfer scheme for the women of the state. All the women who are not in government employment from the age 25 to 60 are eligible to get a monthly stipend of 500 rupees or 1000 rupees depending on the category of household. That is, I think, the only scheme in India which is directly transferring money without any conditions. Only the eligibility is there. It's a universal scheme. Apart from that, for the healthcare, we have a scheme called Swasthya Sathi. That is also universal. All of the families in the state are covered under that, except for the ones who are already having some kind of insurance like ESI or some government funded insurance like government servants. The third thing which targets the poverty is the food security. And our state has also universalized food security. There are almost 9.5 crore population covered out of 10 plus crores, more than 95% who are getting subsidized food grains and substantially subsidized food grains. In the agriculture field, the scheme called Krishak Bandhu was started, which was the pioneering scheme for all the farmers in the state. Currently, 64 lakh farmers are benefiting from this scheme as far as my information goes. And all these schemes and other schemes like pensions, widow pensions, pensions for old age people, including general categories and other categories, they are all being implemented in DBT mode, reducing the pilferages and leakages. Now coming to the employment and the skilling perspective, which our department is doing, we have showcased some projects in today's semi-final which are being voted. We have taken a lot of initiatives during the COVID time for doing e-learning, e-exams, proctored exams using low cost or open source platforms. Without investing too much, we have been able to cover almost the same number of students in e-learning as well as in proctored exams as used to be covered during offline period. So we have been able to reach out to people, and we had even subsidized data charges for the economically weaker section people from our state council. Apart from this, we have taken a lot of e-initiatives in the department. As Mr. Bhushan Kumar pointed out, I was the president and CEO of National E-Governance Division from 2013 to 2016, early 2016. And a lot of initiatives were taken during that time. Digital India was launched at time. Digital Locker, which is taking large strides, was launched at that time. The Umang platform was conceptualized at that time. So that
focus on e-enablement or using technology for serving people has been continued in all the departments which I have been after 2016, including this department. And here we have done, we have created platforms for skilling, we have created platforms for connecting with students, for polytechnics, ITIs, council. All the things are mostly e-enabled, and we are improving the quality of platforms also as we go along. Last but not the least, I would like to talk about our state's own scheme for skilling called Utkarsh Bangla. Utkarsh Bangla is a fully state-funded scheme which aims to provide skilling and skilling-linked employment. And recently, we have reoriented the scheme to make it totally demand-driven. We have done a vast amount of outreach to all the industries in the state through different departments, all the agencies which employ technical manpower, including the contractors of different state departments who require technical manpower, to collect their demand of different skilled people in different job roles under different sectors through a portal. And then we are engaging those very industry units, establishments, or the agencies to render the skilling in classroom plus on-the-job training system. This process has taken a few months of time. We are still kind of scaling it up. The training has started, and this would lead to definite employment after the skilling, because we are looking at the employment vacancy first before starting the skill training. Another program which we have launched recently is called the Assured Placement Program, which is similar to industry-led training model, where we are asking the industry to come forward to train people in the vacancies they have on the basis of existing vacancies, and they would give a kind of conditional job offer to all the trainees before the training starts, so that the trainee knows that if I complete the training, if I am successful in assessment, I would get this job. I know the location, I know the remuneration, I know the conditions, and that would lead to much more yield in terms of trainee going to the jobs. A lot of time what happens, if we are not connecting the jobs to the trainee is in a kind of lack of knowledge and doesn't know what exactly that job entails. And once that person lands at the job, they find that the working conditions are not to their liking, and then they kind of come back. So all these problems would be taken care of. Industry would get people ready from the day one because they are trained in the industry by them only. This will also lead to large scale traction in terms of training and employment, confirmed employment at the end of training. We have already empaneled multiple training partners, including big names like Simplex, who would be training these people and engaging these people. And we are looking forward. These are the steps we have taken, but we are looking forward to anything better, any suggestions from the projects which have already been put up for voting, or from the co-panelists, or from anybody else. Here I would end my submission. Thank you. Thank you very much, Mr. Agarwal. I think you have really given a very good insight of what is happening in West Bengal. And I fully agree with you. What West Bengal does today is followed in the country later on. I think that's really, you have covered both the welfare schemes and also the training, your training initiatives, especially the job oriented, and mapping it to the job and initiating on that is really, really noteworthy. I must also really thank you for your efforts to operationalize the digital locker and the Umang platform. I think these two platforms are the most pervasive platforms today, and really, really helping most of the citizens to digitize their records and use it tremendously. I must really thank you for that initiative which has been there. And you are really carrying on with those particular concepts in your department. And even in the difficult period of pandemic, you were able to cover all these trainings to the people. Thank you very much. It would have really helped
to raise the standard of living in the West Bengal. And it is going to be there over the next few years, the way I see it. Let me now go next to Mr. Pawan Arora let's talk something about the housing and what all the initiatives have been taken in the state of Rajasthan. I think you're on mute. Mr. Arora, you're on mute. Yeah. Thank you, Mr. Bhushan. Thank you. And I welcome all the panelists also. And kindly allow me to speak in Hindi in between. We are from a Hindi speaking state. So, like you have just given an idea about the state of development. Development is a very vast concept, I think, because it covers rural development, urban development. And if we talk about urban development, because I actually prefer talking about urban development right now. So urban development में भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे हैं. एक तो आपका हो सकता है कि पोल्यूशन फ्री सिटी होना चाहिए, पार्किंग है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, स्लम के इश्यूज हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग के इश्यूज हैं, ईज इन लाइफ है, बहुत सारे इश्यूज हैं. और मैं ऐसा मानता हूं कि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं अर्बन इश्यूज को हैंडल करने में. अभी मैं फोकस सिर्फ अर्बन इश्यूज में ही करूंगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन हाउसिंग बोर्ड डीलिंग विद द हाउसिंग इश्यूज. सो लेटर ऑन आई विल कम टू हाउसिंग, बट जस्ट एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, तो इतने सारे इश्यूज में हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ फोकस करना चाहते हैं. जो अर्बन लाइव्स हैं, अर्बन सिटीज हैं, उनको किस स्टेज पे लेके आना चाहते हैं. अभी हमें ये मालूम नहीं है कि हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम मेट्रो पे जाना चाहते हैं, हम मोनो रेल पे जाना चाहते हैं, हम BRTS पे जाना चाहते हैं, या हम कोई और ऑल्टरनेटिव लेकर के आए हुए हैं. अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो हमें मालूम नहीं है कि हम रेड लाइट फ्री रोड्स बनाना चाहते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाईओवर्स एंड एलिवेटेड रोड्स पे जाना चाहते हैं, या हम किस चीज़ पे जाना चाहते हैं. ऐसे अगर हम पोल्यूशन फ्री की बात करें तो हमें ये मालूम नहीं है हम पेट्रोल डीजल व्हीकल्स पे जा रहे हैं, या हम CNG पे जा रहे हैं, या हम हाइड्रोजन पे जा रहे हैं, या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं. तो अभी भी इस पे आई थिंक कि जितना मंथन होना चाहिए अर्बन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, उतना मंथन नहीं हुआ है. स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. स्लम्स अभी भी सभी शहरों में दिखाई पड़ते हैं. उनको रिलोकेट करने के लिए कई तरह की स्कीम्स आई. कभी हम इन सिटू डेवलपमेंट की बात करते हैं, कभी उनकी शिफ्टिंग की बात करते हैं, कभी हम उनके कुछ और हाउसिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए हैं. तो अभी भी जहां जिस शहर में जिसका जैसा मन आता है, जैसा माहौल होता है, वैसे ही वो अपने अपने इनिशिएटिव लेने लग जाते हैं, और वो हैपजार्ड डेवलपमेंट ही दिखाई पड़ता है. बहुत सारे शहरों में अभी भी BRTS की जो डेडिकेटेड रोड्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसमें कोई बसेस ऑपरेट नहीं हो रही हैं. बहुत सारे शहरों में अभी भी मेट्रो आ गया है, लेकिन मेट्रो का रूट इतना छोटा है कि वो अनवायबल है. तो इस चीज़ पे हमको एक बार ध्यान देना पड़ेगा, और ये एक अच्छा फोरम है, नेशनल लेवल पे ध्यान आकर्षित करता है. स्कॉच इसके लिए जाना जाता है कि ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, तो क्यों नहीं हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एक कैटेगरी के सिटीज के लिए डिसाइड कर सकते हैं, और क्यों नहीं हम उसको उस ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं. दूसरा जो अर्बन डेवलपमेंट में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, वो लगता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है म्यूनिसिपल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, वो बहुत कम होना चाहिए, जिसकी तरफ हमें कोई ध्यान नहीं दिया हुआ है. जैसे जो भी म्यूनिसिपल इश्यूज होते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ही बेसिक है, क्लीनलीनेस की बात करें, हम सैनिटेशन की बात करें, तो अगर कचरा कहीं है, नहीं उठ रहा है, तो उसकी कोई कंप्लेंट आती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या होना चाहिए. सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही हैं, रोड लाइट जल नहीं रही है, या और कोई अर्बन इश्यूज है, डेड एनिमल का इशू है, स्ट्रे एनिमल का इशू है, तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए. इस पर कोई भी हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हमने अभी तक बनाई नहीं है. और उससे क्या होता है कि हर
म्युनिसिपल कमिश्नर या मेयर के चेंज होने के साथ में शहर वालों को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अगर वो बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटाइज्ड हैं, तो उनको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, उनके काम जल्दी होने लग जाते हैं। और अगर वो नहीं है सेंसिटिव या मेयर किसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के हैं और पार्टी इन पावर डिफरेंट है या मेयर और कमिश्नर के कोई इश्यूज हैं, तो लोग उसको सफर करते हैं, फेस करते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं इस फोरम पे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अर्बन इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन, उनको हैंडल करने की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, इस पे भी अभी तक बहुत कम काम हुआ है, इसको हमको देखना चाहिए। और अर्बन डेवलपमेंट हम तभी ला सकते हैं जबकि हम इन इश्यूज के बारे में कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बना दें और फिर उनको इम्प्लीमेंट कराने की तरफ ध्यान दें। जहां तक अर्बन इश्यूज में एक इशू है स्लम से रिलेटेड, या यूं कहिए कि हाउसिंग फॉर ऑल, तो हाउसिंग फॉर ऑल के हिसाब से हर स्टेट में आई थिंक हाउसिंग बोर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनको भी अपना गोल क्लियर नहीं है कि उनको लो कॉस्ट हाउसिंग पे जाना है, केवल गरीबों के मकान बनाने हैं, या उनको कोई सिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी अपनी कोई रोल प्ले करनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आज से 50 साल पहले बना था और उसका जो टैगलाइन है, ध्येय वाक्य है, वो है हमारा प्रयास सबको आवास। और एक जमाना था हाउसिंग बोर्ड अपने शिखर पे था और पूरे स्टेट में जहां कहीं भी हाउसिंग की बात होती थी, हाउसिंग कॉलोनीज की बात होती थी, तो ऐसा मानते थे कि हाउसिंग बोर्ड ही हमको अपना मकान प्रोवाइड करेगा। और 50 साल पहले जब ये गठित हुआ था, उस समय इतना कोई प्राइवेट सेक्टर में बिल्डर्स या दूसरे प्लेयर्स भी नहीं थे, तो एक तरह से मोनोपोलिस्टिक एटमॉस्फेयर था। उसके बाद धीरे धीरे जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया हाउसिंग में और कंपटीशन की फीलिंग आ गई, उस दौरान ही हाउसिंग बोर्ड के क्वालिटी इश्यूज आने लग गए, लोकेशन ऑफ हाउसिंग की इश्यूज आने लग गए, शहर से बहुत दूर कहीं एक साथ क्लस्टर में हाउस डेवलप कर दिए, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए। तो उसको लेकर के हाउसिंग बोर्ड का उतना अच्छा समय नहीं रहा और हाउसिंग बोर्ड धीरे धीरे अपनी फिनेंशियल पोजीशन और लस्टर लूज करता चला गया। और ऐसा हुआ कि 2 साल पहले तक राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास में करीब 18 से 19 हजार हाउसेज की अनसोल्ड इन्वेंट्री इकट्ठा हो गई। तो जैसे ही 2-1 साल पहले और खासतौर पे विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट ये इशू सामने आए और इसको टेक केयर करने का या इसको हैंडल करने का एक प्रयास करने का निर्णय लिया गया, तो ये हुआ कि सबसे पहले तो हम इस अनसोल्ड इन्वेंट्री को क्लियर करें। अनसोल्ड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए हमने एक प्रयोग किया कि जो बहुत पुराने मकान बने हुए थे, जो पिछले 15-20 साल से इकट्ठा होते होते 19,000 मकान की अनसोल्ड इन्वेंट्री बन गई थी, उसको सेल करने के लिए हमने एक डिस्काउंट फॉर्मूला लगाया और जो हाउसेस थे उनको जो बेचने के मिनिमम बिड प्राइस थी MBP, उसको रिड्यूस करके कुछ कैटेगरीज में 25% डिस्काउंट, कुछ कैटेगरीज में 50% डिस्काउंट हमने किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सारे हाउसेस को ले आए, सबको एनलिस्ट कर दिया और एक सेट सिस्टम बना दिया कि एवरी मंडे 10 AM द बिडिंग विल स्टार्ट एंड एवरी वेडनेसडे 4 PM द बिडिंग विल क्लोज। और इस दौरान सबको पता था कि ये एक टाइम में हमने करीब 9,000 ऑड हाउसेस को बिडिंग के लिए उस प्लेटफॉर्म पे डाला, तो सबको मालूम था पूरे स्टेट में, स्टेट के बाहर भी, कि किस वक्त बिडिंग शुरू होगी, किस वक्त बिडिंग क्लोज होगी। तो लोगों ने ऑनलाइन बिड करना शुरू किया और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट within these last 2 years, when specifically we were passing through the pandemic time, we have sold almost 11,000 houses out of 19,000. So 11,000 houses we have sold through online auction, online bidding, and we have collected almost 2,000 crores from this. And अब जो हमारे पास 7-8 हजार हाउसेस बचे हैं वो 2-3 क्लस्टर्स में हैं। एक जगह 1600 हाउसेस का फ्लैट्स का क्लस्टर है, एक जगह 3700 का क्लस्टर है, एक जगह 1500 का है। तो वो इसलिए बच गए क्योंकि वहां तक सिटी की एक्सेस नहीं है या कुछ और इश्यूज हैं। तो अब उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को हमने टारगेट करना है और उसको विल सॉर्ट इट आउट और हमारा ये पूरा जो इन्वेंट्री का बैकलॉग था ये क्लियर हो जाएगा। अब जब हाउसिंग की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें केवल गरीबों के मकान ही नहीं बनाने, बल्कि ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर की बजाय
गवर्नमेंट एजेंसी से हाउस लेना चाहते हैं उनको भी हम कैटर कर सकें। तो हमने बहुत सारे नए हाउसिंग, जब ये हमारा इन्वेंट्री धीरे धीरे क्लियर होती गई तो हमें कॉन्फिडेंस मिला कि अब हम नए नए प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री का प्रॉब्लम नहीं रहे, इसलिए हमने पहले ही डिमांड सर्वे किया और 18 नए सिटीज में हमने छोटे छोटे लो कॉस्ट हाउसिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंट हाउसेज प्लान किए और करीब करीब 5,000 हाउसेज राइट नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन 18 स्मॉल सिटीज। और वो बहुत ही लो कॉस्ट हाउसिंग है और आपको जान के अच्छा लगेगा कि करीब 6 लाख रुपए में हम 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 BHK ये अवेलेबल करा रहे हैं नीडी एंड पुअर को। और इसी तरह से आगे से 2 BHK 3 BHK वो भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। इसी तरह CMJY जो है चीफ मिनिस्टर जन आवास योजना, उसमें भी हम करीब करीब 4,500 हाउसेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो बिल्कुल अर्बन पॉश एरियाज में। अब तक इन स्कीम्स की एक दिक्कत ही रहती थी कि गरीब का मकान है तो शहर से दूर बना दिया जाता था। हमने उस धारणा को तोड़ा कि गरीब का मकान है तो वो शहर के बीच में ही होना चाहिए, तभी वहां पे धोबी है, कोई आपके हाउसिंग मेड्स हैं, कोई आपकी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कोई और रिक्शे वाला है, कोई और है, वो भी वहां शहर के बीच में रहेंगे तो और लोगों के लिए भी ज्यादा उपयोगी हो सकेंगे। तो उनके लिए हम शहर के बीचों बीच उनको सिर्फ 6 लाख रुपए में 1 BHK कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 10 टाइम्स हमारे एप्लीकेशन आए। तो ये एक हाउसिंग में हमने नया प्रयोग किया। इसी तरह सोसाइटी के कुछ डिफरेंट जो वर्ग हैं, जैसे टीचर्स हैं, तो हम टीचर्स के लिए एक नई स्कीम लेकर के आए जिसमें केवल टीचर्स रहेंगे। एक पुलिस कांस्टेबल्स के लिए स्कीम लेके आए मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, उसमें पुलिस कांस्टेबल्स को हमने अलॉट किया। तो 574 फ्लैट्स, 574 फ्लैट्स वी आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर टीचर्स एंड पुलिस कांस्टेबल्स। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हम एक स्कीम लेकर के आए। इसी तरह से ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के लिए हम एक स्कीम लेकर के आए जिसमें IAS, IPS, IFS, IRS और दूसरे ग्रुप ए सर्विसेज के ऑफिसर्स को हमने किया। उसके लिए हम 180 फ्लैट्स बना रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ। इसको देख करके मेरे ख्याल से तमिलनाडु में एक स्कीम लॉन्च हुई, लेकिन उनकी स्कीम में जैसे पर फ्लैट है वो 1800 स्क्वायर फीट का है। हमारा जो फ्लैट है वो एक ऑफिसर को अगर मिलता है वो है करीब करीब 3,450 स्क्वायर फीट का एंड सिर्फ 95 लाख रुपीज में। तो उसको अपने सरकारी घर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, उसको चाहे सरकारी घर मिले या नहीं मिले। इसी तरह से इन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इज कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंसेस फॉर दी MLAs। जो MLAs को हर बार इलेक्ट होकर आते हैं उनको सरकारी आवास मिलता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इसको और जिसको कहते हैं वर्सेटाइल बनाने के लिए या और वायबल बनाने के लिए हाउसिंग बोर्ड में नए नए और कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। एक हमारा बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, वो है दैट इज कोचिंग हब, जिसमें करीब 50 से 60 हजार बच्चे कोचिंग लेने के लिए आ सकते हैं। वी विल अलॉट दीज स्पेसेस टू डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स और वो उसमें करेंगे। और इसको हम एक बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस की तर्ज पे डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह से वी आर डेवलपिंग अ सिटी पार्क दैट इज इन 52 एकर्स ऑफ लैंड। उसके बगल में ही हम एक 40,000 स्क्वायर मीटर में फाउंटेन स्क्वायर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर वॉल पे प्रोजेक्शंस और फिल्म्स और इस तरह की चीजें होंगी। इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन्स और बाकी एंटरटेनमेंट की चीजें भी होंगी, ये फूड कोर्ट्स और ये सब चीजें भी होंगी। तो एक हाउसिंग से हट करके हमने सोचा और अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। और केवल ये नहीं कि गरीबों के मकान बनाए, बल्कि आम आदमी का मकान भी बनाएंगे, मिडिल क्लास के लिए भी मकान भी बनाएंगे। सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट जैसे टीचर्स और कांस्टेबल मैंने बताया, IAS ऑफिसर्स या ग्रुप ए सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए मकान बताए, ये सब बनाएंगे। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में और हमने जैसे अभी हाल ही में 2 चौपाटी शुरू की, आप फूड कोर्ट कह सकते हैं, जयपुर चौपाटी नाम से, वो हमने की। उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अर्बन एरियाज में जब हम इन फूड कोर्ट्स को लाए हैं तो वो इलाकों में फुटफॉल बहुत बढ़ गया। और फुटफॉल बढ़ने से जो हमारी प्रॉपर्टीज वहां पे ऐसी अनुपयोगी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी, उनकी अब डिमांड हो गई है और हम उनको अच्छी प्राइस पे सेल कर पा रहे हैं और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ठीक कर पा रहे हैं। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड ने केवल हाउसिंग को ही नहीं रखा बल्कि कॉमर्शियल एरियाज डेवलप किए। रिसेंट टाइम्स में पिछले 1.5 साल में हमने 4 बड़े मार्केट डेवलप कर दिए हैं। हार्डवेयर के लिए एक आतिश मार्केट डेवलप किया है। एक कोरोना के टाइम में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, RUHS, जो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उसके आसपास दवाइयों की दुकानों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसके लिए 52 शोरूम्स वाला एक हमने आयुष मार्केट डेवलप किया। उसके पास में एक करीब 150 शोरूम्स का हमने राणा सांगा मार्केट डेवलप किया। और एक मार्केट झूलेलाल मार्केट कोई 12 साल से अनुपयोगी पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, उसमें 500 शॉप्स हैं एक ही जगह पे। उन शॉप्स में से 266 शॉप को हमने तिब्बती रिफ्यूजीज को अलॉट किया।
एक नया प्रयोग था, और वो मार्केट अभी 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसका हम उद्घाटन करने वाले हैं। और सारे तिब्बती रिफ्यूजीज ने वहां पर आकर के अपने ऊनी कपड़े बेचने की दुकानें लगा ली, और वो पूरा एरिया अलग से निकल के आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हम हाउसिंग की बात कर रहे हैं, तो हाउसिंग बोर्ड को वायबल बनाने के लिए, वर्सेटाइल बनाने के लिए, आम जनता के लिए उपयोगी बनाने के लिए हम केवल लो कॉस्ट हाउसिंग पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक हो रही है। मुझे आपसे शेयर करते हुए खुशी है कि जिस हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की बात चल रही थी, और मैंने जब ज्वाइन किया था, हैप्पी टू शेयर, तो मैंने पहला चेक एक काटा था 5 करोड़ रुपए का बैठते ही। वो इसलिए काटा था कि अगले दिन सैलरी बांटनी थी और उसके लिए एफडी को तोड़वाना था। और आज इसी पिछले 1.5-2 साल में हम 3600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं। 3600 करोड़ रेवेन्यू इज इन किटी। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने केवल लो कॉस्ट हाउसिंग या इन्वेंट्री क्लियर करने पे जोर नहीं दिया, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटी में हमने अपना रोल समझा, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लाए, कमर्शियल स्पेसेस को हमने डेवलप किया, और इस तरह की जो कार्रवाइयां मैंने आपको बताई होगी। तो आई थिंक दिस इज ऑल। Excellent, excellent. This is really very, very eye-opening. I think what you have done is extremely innovative. And I'm really happy that some of the issues which you raised are very, very relevant, especially as far as the standardization and the response time is concerned on an overall urban development. The housing is a part of it, but these are the two very, very fundamental foundations which have to be there, which have to work. They have to be worked out at a national level, not at the state level. And I think it requires a lot of deliberation, and your inputs would be very, very valuable on this thing. The problem that you faced in housing, in fact, that has been an all India phenomena. There has been an excess inventory, not only in the government housing boards, but also in the private sector. I know the builders of Bombay and Delhi and Gurgaon and Bangalore have been suffering because of that. But fortunately, over the last 6 months or so, the winds have changed and there is a fair amount of pickup in the housing area. And I think that's a very positive sign as far as the industry and the end user is now really picking up for the investment in this area. This is one of the clear signs of improvement in the standard of living, and the demand and the money flow is there. And the actions that you did, that you went beyond the poor housing to various other areas in various segments and the commercial, which actually develop the areas so that you can do more housing, and your housing, whichever has been done, will become more valuable to the end user. I think that has been very, very innovative. So I wish you all the best for the future to come. And I'm sure the other panelists and other attendees would definitely benefit from what you have shared just now. Thank you very much. I'll now move on to a very, very important segment of Indian economy, that is the agriculture and the farmers. So I'm very happy now to introduce Mr. Mohammad Iqbal Chaudhry, who is the Director, Agriculture Production and Farmer Welfare Department in Jammu and Kashmir. I would like him to share his initiatives and views and vision for the next 5 years. सबसे पहले इस नशिस्त के हमारे चेयरमैन जनाब भूषण मोहन साहब, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। Thank you. और साथ साथ में जितने भी बाकी दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपनी अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सब को, या बाकी जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखने में जुड़े हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूं इस प्रोग्राम में। जो टॉपिक जिस पर मुझे बोलना है कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे अपने मुल्क में जम्मू एंड कश्मीर वाहिद एक वैसी जगह है कि जहां पे ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं।
और जब ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं तो उसके लिए हम लोग क्या इनिशिएटिव लें कि जो 70% से ज्यादा लोग हमारे एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जब इन सब चीजों को हम देखते हैं कि जिस वक्त हमारे यहाँ मुल्क के बाकी हिस्सों में मॉनसून होता है तो कश्मीर के अंदर मॉनसून के ना होने की वजह से हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग किन किन क्रॉप्स को ग्रो करें जिससे कि हमारे फार्मर की इकोनॉमी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन है कि 2022 तक उसकी आमदनी को डबल करना है और उसके साथ साथ किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाना है। जब हम इन सब चीजों की तरफ देखते गए तो सबसे पहले जिस चीज का हम लोगों ने यहाँ पे इनकार किया कि हमने अपनी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो स्वॉट एनालिसिस किया कि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और हमारे पास थ्रेट्स क्या है। जब इन सब चीजों को हम लोगों ने मद्देनजर रखा तो हमने देखा कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कश्मीर कि हमारे यहाँ स्पाइसेस फूड खाने की बड़ी आदत है लोगों को कि यहाँ पे सबसे पहली जो चीज कि हमारे कश्मीर में सैफरान, जिसकी के तकरीबन 2500 साल से जायद की हिस्ट्री है, जो 1996 से पहले तकरीबन 6000 हेक्टेयर एरिया पे ग्रो होता था और जब 2010 में इसका सर्वे किया गया तो वो एरिया सिर्फ 3700 हेक्टेयर रह गया था। तो हम लोगों ने मिलकर एक जामिया मंसूबा बनाया कि इस सैफरान की कल्टीवेशन को रिवाइव करने के लिए किस तरीके से क्या क्या इकदाम किए जाएं और विद द हेल्प ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हम लोगों ने 400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो यहाँ बनाया और हम इस चीज में कामयाब हुए कि किस तरीके से हम अपने इस एरिया को सस्टेन कर पाए और जो हमारी प्रोडक्टिविटी 2010 में 1.8 केजीज पर हेक्टेयर रह गई थी, इसको वापस कैसे लाया जाए। और आज मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि इस साल अभी कुछ दिन पहले जब हमने 21 अक्टूबर को सैफरान की फ्लावर की प्लकिंग स्टार्ट होती है तो 22 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पर सैफरान फेस्टिवल मनाया और उस दिन से लेके आज दिन तक लाखों की तादाद में जो हमारे टूरिस्ट लोग थे उन्होंने सैफरान की खेती को देखा भी। और मैं बताने में ये खुशी महसूस करता हूं कि 1.8 से लेके 5.30 तक हम इस प्रोडक्शन को पर यूनिट हेक्टेयर एरिया के हिसाब से बढ़ाने में कामयाब हुए। ये सबसे बड़ी पहला इनिशिएटिव जो हमने यहाँ के स्पाइस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कोशिश की। जो दूसरा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया कि कश्मीर लाल मिर्च के नाम से मशहूर जाना जाता है। हम लोगों ने देखा कि हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में केरला या कर्नाटका से हमारे लोग यहाँ से वहां से लाल मिर्च खरीद के लाते थे और उसको कश्मीर के नाम से बेचा जाता था। हमने उस चीज को दोबारा रिवाइव करने के लिए 5000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया के लिए एक प्रोग्राम बनाया कि जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च को हमने रिवाइव किया और जिसके साथ हम लोगों ने 190 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जोड़ा और 10,000 से ज्यादा फार्मिंग फैमिलीज को भी जोड़ा और जिससे 54 करोड़ रुपए का हमारी स्टेट को उससे रेवेन्यू आएगा और उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमने पूरी कोशिश की। मैं बताने में ये फख्र महसूस करता हूं कि लेवेंडर जो दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरीके से लेवेंडर ऑयल कल्टीवेशन को ज्यादा से ज्यादा एरिया में लाया जाए और 1775 हेक्टेयर एरिया जो था उस पे हमने लेवेंडर ऑयल की कल्टीवेशन की क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसी ऑयल की जो कीमत है वो 1 लीटर की कीमत जो है वो 25,000 रुपए है और जिस कीमत को हमने कम करके ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए भरपूर इकदाम कोशिश किए ताकि हमारे फार्मर की इनकम बढ़े। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने बड़े दूसरे मेजर इनिशिएटिव लिए कि यहाँ पे जिस वक्त बाकी मॉनसून एरिया मुल्क के अंदर होता है तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हमको देती है कि हम किस तरीके से जो वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन है और खासकर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो कभी हमारे लिए ख्वाब बन के रह जाती थी, हम लोगों ने यहाँ 25,000 हेक्टेयर एरिया के लिए हम लोगों ने एक जामिया मंसूबा बनाया है ताकि हमने 3 बड़ी कंपनीज के साथ MOU किया कि एक प्रवास स्कीम शुरू की गई यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें एयरलाइन अथॉरिटीज के साथ भी एक मीटिंग की गई और उस किराए को घटाया गया
ताकि जो हमारे यहाँ पे जो सब्जियां पैदा होती हैं वो उस प्रवास स्कीम के तहत बैरून रियासत और बैरून मुल्क ले जाने में हम लोग कामयाब हो जाएं, जिससे हमारे फार्मर की आमदनी जो है वो डबल हो जाए। मैं बताने में यहाँ ये फख्र महसूस करता हूँ कि इस साल हमने यहाँ कश्मीर वादी से हमारे अप्रैल और मई के महीने में जो स्नो पीज एक्सोटिक वेजिटेबल में एक चीज आती है, यहाँ से जब उसकी मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया तो जिस वक्त हम उसको गुजरात की सरजमीन पे ले गए तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उसको इतना पसंद किया कि उसकी डिमांड 160 रुपए किलो वहां जब जाके बिकी, और जिससे हमारा किसान इतना मुतमईन हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनका भरपूर फायदा मेरे किसानों को मिलना स्टार्ट हुआ। मुझे ये भी खुशी महसूस होती है ये बताते हुए कि रणवीर बासमती जो हमारे पूरे मुल्क में मशहूर है वो हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑर्गेनिक फार्म में प्रोड्यूस की जाती है। मुझे ये भी फख्र महसूस होता है, मैं बताऊं कि 3 किस्म के चावल, कश्मीरी मीठा चावल, मुश्तबुजी राइस और रेड राइस, जिनके रिवाइवल के लिए हम लोगों ने भरपूर कोशिश की ताकि हमारा जो किसान है वो खेती के साथ जुड़ा रह सके। मुझे यह भी फख्र महसूस होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 35% ऑफ द जो एरिया है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, और इसको जो वेजिटेबल्स आने वाले वक्तों में हमारी गवर्नमेंट ने जो 2 ऑर्गेनिक पॉलिसीज यहाँ पे एजेंसीज बनाई, जब वो 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके काम करेंगी तो आने वाले 3 से 5 साल में जो हमने एक मिशन लिया है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितना भी वेजिटेबल का एरिया है हम उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, और ऑर्गेनिक में भी जो हमने उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एनपीओपी की गाइडलाइन के मुताबिक की, क्योंकि जब हमको इंटरनेशनल मार्केट में इसको ले जाना है तो जब हम एनपीओपी के नॉर्म्स को नहीं अवॉइड करेंगे तो उसकी मार्केटिंग हम बैरून रियासत नहीं कर सकते। हमने 4 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एमओयूज किए। सबसे पहले जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसी अपीडा है कि मार्केटिंग के लिहाज से वो हमें बाहर कैसे मदद करेगी, उसमें चाहे हमारी यहाँ की वेजिटेबल्स हैं, चाहे हमारी यहाँ की स्पाइसेस हैं, वो चाहे हमारे यहाँ के फ्रूट्स हैं, उनको बाहर कैसे लिया जाएगा, उनके साथ एमओयू किया और उसमें हम कामयाब भी हुए कि हमारे फ्रूट्स जो थे वो बाहर जाना स्टार्ट हो गए, और अब हमारी दिसंबर के महीने से वेजिटेबल भी बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं बताने में ये फख्र महसूस करता हूँ कि हानि हमारे यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा यहाँ का किसान है, इस वक्त हमारे यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा कॉलोनीज मौजूद हैं। हमारे यहाँ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसका इतना पोटेंशियल है कि हम 10 लाख से ज्यादा कॉलोनीज जो हैं उनको यहाँ पे उनको प्रोडक्शन उनके कर सकें, और हमारा जो यहाँ का किसान है जिस वक्त वो यहाँ 2 क्रॉप्स कश्मीर में ले लेता है ऑर्गेनिक खाने की, उसके बाद वो यहाँ से माइग्रेट करता है हमारे राजस्थान के खेतों में जहाँ वो जाते हैं, और वहाँ एक तो वो उन लोगों से किराया लेते हैं क्योंकि सरसों की क्रॉप वहाँ पे एक लार्ज स्केल पे होती है, तो पॉलिनेशन में ये हमारी जो एपीकल्चर इंडस्ट्री है ये वहाँ एक बहुत बड़ा रोल 20 से 25% प्रोडक्शन को बढ़ाने में रोल अदा करती है। जब वहां से वो 2-3 क्रॉप्स लेके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, आते आते जब वापस ये सारे साल का साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये 8 से 10 क्रॉप्स लेते हैं, और एक मेरा वो किसान जिसको अपनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए जिसके पास 100 यूनिट्स ऑफ अपायरी यूनिट्स हैं, वो 5 लोगों को रोजगार भी देता है, और उसके बगैर उसकी पूरी फैमिली का जो घर का खर्चा है वो भी चलता है, और उससे जो नेट प्रॉफिट तमाम 5 मुलाजिम रखने के बाद जो बचता है वो 5,75,000 रुपया पर एनम उसको बचता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये कोशिश की कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में किन और चीजों के लिए जाए कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमने यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 100% इंप्लीमेंटेशन उसकी की। हमने यहाँ पीएम किसान की जो इंस्टॉलमेंट जो इस वक्त तक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 9 इंस्टॉलमेंट जिनकी दे चुके हैं, वो आज तक हमने 100% उन लोगों की कवरेज के लिए, और जहां किसी जगह रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी वो किया। हमने किसानों के लिए जहां पे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को 100% कवरेज के लिए लिया ताकि किसानों को पता लग सके कि किस तरीके से लिया। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो सबसे बड़ा एक मिशन स्टार्ट किया कि यहाँ कश्मीर के अंदर सर्दियों में बहुत साल पहले यहाँ सरसों की अच्छी काश्त होती थी जो आस्ता आस्ता खत्म हो रही थी। उस सरसों की काश्त को रिवाइव करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
मदद से 1,10,000 हेक्टेयर एरिया कवर किया, इसलिए कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ सरसों पैदा होती है, उस सरसों से जो हमारी तेल की रिकवरी होती है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री 10% से लेके 20% तक उसकी ऑयल की रिकवरी जो है वो ज्यादा होती है। और हमें ये उम्मीद है इस बात से कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए, इन सब इनिशिएटिव से हमारे किसान को किस तरीके से फायदा मिलेगा, ताकि बैरून रियासत और बैरून मुल्क जाने के लिए हम तमाम वो इकदाम करें जहां जहां से भी हमारे किसान को फायदा हो सके। मैं ये भी फख्र महसूस करता हूं कि ये बताने में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हो, चाहे वो हेल्थ मिशन की स्कीम्स हो, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम्स हो, वो तमाम स्कीम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। और प्रेजेंट डे में मुझे बताते हुए ये फख्र महसूस होता है कि वो पोटैटो की क्रॉप जो कि बाहर से हम हिमालयन स्टेट से यहाँ लाते थे, हम लोगों ने पोटैटो की कल्टीवेशन को और पोटैटो वायरस फ्री पोटैटो की कल्टीवेशन को लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पूरे इकदाम किए कि ताकि हम यहाँ से वो सीड बाहर भेज सकें। जब इन सब चीजों के लिए हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम एग्री टूरिज्म की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो आबशार, यहाँ के जो चश्मे, यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं, वहां पे हमने ऑर्गेनिक कंसेप्ट को जब हर जगह पे हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टॉल लगाए, ताकि वो हमारे जो टूरिस्ट लोग जो हैं वो जब कश्मीर में आते हैं, जम्मू में आते हैं, माता वैष्णो देवी को देखने आते हैं, कि यहाँ की मेज, यहाँ का हनी, यहाँ का सैफरान, यहाँ का लेवेंडर ऑयल, यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ का काला जीरा, वो कम्बो बना के उन तमाम डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट पर रखा जाए, ताकि हमारे मुल्क से आने वाले जितने भी सयाह लोग हैं वो इस चीज से लुत्फ अंदोज हो सकें, वो फायदा उठा सकें, और कश्मीर के किसानों की इनकम कैसे बढ़े, उनकी फलाह बहबूदी कैसे आगे चले, ये तमाम इकदाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इस पर पूरे तरीके से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस होता है कि जब भी हमने कोशिश की, जब 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का स्कीम बन रही थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से इसको बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है, जिसका कि मिशन डायरेक्टर मैं हूं, और फसल बीमा योजना को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए वो भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने तमाम इकदाम किए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को ये थ्रेट है कि किसी वक्त बहुत तेज बारिशें हो जाती हैं, कभी हेल स्टॉर्म हो जाता है। अभी रिसेंट पास्ट में जो हेल स्टॉर्म हुआ, जिससे कि हमारी यहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान भी हुआ, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यूटी गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि जिन्होंने हमारे किसानों के हमेशा साथ साथ रहे और उनके नुकसान को, जो हमारी एसडीआरएफ की गाइडलाइन थी, उससे उनके नुकसान को बर्पा किया गया, ताकि हमारा जो किसान है वो जुड़ा रहे। इसके साथ साथ मैं उन तमाम लोगों का ये शुक्र अदा करता हूं कि हमने एक नई चीज यहाँ पे स्टार्ट की, कि जिस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ये कामयाबियां नहीं होती, हमने यहाँ पे स्वीट कॉर्न को लॉन्च किया, और आज भी उस स्वीट कॉर्न को फ्रोजन करके जो उसका टेस्ट है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन स्वीट कॉर्न का जो टेस्ट है वो यहाँ हमारे यहाँ का है। हमारे यहाँ की चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे सीरियल क्रॉप्स हों, चाहे दूसरी स्कीम्स हों, इन तमाम स्कीमों को इंप्लीमेंट करने से हमारा जो किसान है, और खासकर मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल हमारे सैफरान को जीआई टैग दे दिया, वही सैफरान जो 70,000 रुपए किलो बिकता था, जो ई ऑक्शनिंग की फैसिलिटी को अवेल किया गया, वही सैफरान 1,75,000 से लेके 2,28,000 तक बिका। और जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे किसानों के साथ मन की बात में ये बात की, तो किसान खुद बताए कि हमने ये मिशन जो 2022 में रखा था, हमने इसको 2021 में इसकी अचीवमेंट की। और इसी के साथ, क्योंकि शायद मेरा टाइम खत्म हो रहा होगा, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, अगर और भी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूं, लेकिन शायद जनाब भूषण साहब मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे टाइम की वजह से, तो मैं किसानों की तर्जमानी किस लिहाज से करूं, मेरे लिए फख्र की बात है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो करा है काम, इट इज रियली रियली वेरी गुड, एक्सेलेंट। यहाँ पे कश्मीर में आपके जितने क्रॉप्स हैं, दे आर ऑल कैश क्रॉप्स। यस सर। They are highly priced. Of course, saffron is very expensive. Yes, sir.
आपके ड्राई फ्रूट्स भी जितने हैं, Yes, sir. आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, जी सर, जी जी, ऑल वेरी वेरी प्राइसी, चिलगोजा हो गया। यस सर, कश्मीरी मिर्च तो बहुत ही मशहूर है, जिसपे आपने बहुत अच्छा काम करा है। जी जी जी, मेरे ख्याल फार्मर्स को भी बहुत फायदा हुआ होगा। आई थिंक दैट्स द मेन, एग्रीकल्चर आपका जो है उनको भी बहुत फायदा हुआ। टूरिस्ट के भी इट बिकम्स अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन। वैसे तो टूरिस्ट अट्रैक्शन कश्मीर में बहुत है, बट जी। दिस बिकम्स अनदर very very attractive thing for people to buy, and once they get addicted, I think आपकी market और बढ़ती जाएगी। I think you have really contributed it very much. तो सर मैं ये गुजारिश आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे जितने भारतवासी हैं वो कश्मीर आए, हमारे एग्री टूरिज्म का लुत्फ लें, और हम लोगों को ये मौका मिले कि हमारे फार्मर के खेतों का जितना भी प्रोड्यूस है उसका टेस्ट लें, ताकि ये जो मालिक ने हम लोगों को नियामत दी है इसका हम भरपूर फायदा ले सके। Thank you very much. Thank you very much. नमस्कार। And I know, unfortunately, we don't have Mr. Shukla or Mr. Sharma right now. Dr. Gursharan, is there any confirmation? None of them are able to join. We have another 5 minutes before we conclude this discussion. So we can have an open question answer session. From Rajasthan, I am Krishnakant Pathak. We are waiting here. Pathak Sahab, you are there for the order of merit, which is going to be announced 5 o'clock on 5 o'clock. At 4:30, another 5 minutes. Kindly wait. The award is from 5 o'clock onwards. Yeah. So Bhushan ji, you can. I think we can then conclude for this session. I think we had some very, very nice inputs, starting from the skill development, the education from West Bengal. In fact, the West Bengal, what their initiatives are really, really some things which the rest of the country is going to follow in due course of time. Their social what to say, welfare has also been very, very impressive. At the same time, the points raised by Mr. Arora regarding the urban development are very, very relevant. We have taken a note of the standardization and diversification which they have done. I think that's it's really something which can be replicated at other places also. And Jammu and Kashmir, of course, with their initiatives in recovery, in what you say, rediscovery of saffron and Kashmiri mirch and dry fruits, I think again have been very, very noteworthy. I think all these initiatives will definitely result in improving the standard of living and development. I wish all the panelists all the best, and all the participants, I wish them all the best. Thank you very much. Dr. Gurshan, I hand it over to you now. Well, thank you so much. I must say this is one of the finest discussions that we have had since morning. Thanks to you, and thanks to all the panelists who brought in different perspectives from the different domains. As rightly pointed out by you in the beginning itself, when we talk about development, it becomes extremely nebulous as to, what is it that you're going to be talking about when it comes to development. Is it the social indicators you're talking about, SDG, or what else? Because, the areas where we come from in the panel, I'm sure each panelist, whether it is on health, food, nutrition, cleanliness, housing, agriculture, or whatever, even from the perspective of education and technical education, there is an element of development which you correctly said that it adds to not only ease of living but also standard of living, and this contributes to an overall development. So whether it is social, digital, or financial, ultimately it's about inclusive growth and inclusive development. So great.
Grateful to all the panelists and Bhushanji for bringing in that perspective. Thank you very much.